Hello, good morning, assalamu alaikum and welcome to the Pavilion. मैं फ़खर आलम, आप देख रहे हैं Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023. Semi-final number 1 is out of the way. It is semi-final number 2 today that we are getting all set for. But before we start our conversation about that, let me bring into the conversation 4 exceptional gentlemen who've been with me throughout this journey of the Pavilion. I've got 4 former Pakistani captains, 4 outstanding minds in the game of cricket who've been analyzing the games with us throughout this journey. First up, I've got Shoaib Malik. Good morning, assalamu alaikum, Shoaib. Good morning, walaikum salam, assalamu alaikum everyone. Next up, I've got the Nahado ke flesh this morning, Misbah-ul Haq. Good morning and assalamu alaikum, Misbah. Good morning, walaikum assalam, and assalamu alaikum to everyone. और चांदी की लोमड़ी, Silver Fox of the Pavilion, I've got Moin Khan. Good morning and assalamu alaikum, Moin. Sorry, in Urdu, it doesn't sound right in Urdu. I just realized. Walaikum assalam. It doesn't sound right in Urdu. I just said it, but now I realize Silver Fox is much better. आप भी थोड़े से क्रिएटिव होना चाह रहे हैं वसीम भाई. हाँ, ऐसे ही है. And finally, the head of all creativity in the Pavilion, दोस्तों, the boxer part, excellence rapper part, excellence actor part, excellence Sultan Usman. Wasim Akram, good morning, assalamu alaikum. Good morning, assalamu alaikum ji, everyone. पानी चढ़ गया. हाँ? पानी वसीम भाई के थोड़ा चढ़ गया आप पे. अच्छा. सुन रहे हैं तुझे पाए? सुन रहे हो? Not really. Not really, right? Don't care. He's ignoring you completely. You too. Not me. I can't ignore, man. You're all very dear to me. क्या हो गया मिस्टर? क्या हो गया? हमारी कुर्सी हमारा बैलेंस खराब था. हमने दुख बड़ा. मैं पूछा हो गया हूँ तेरे से. वो कह रहे हैं अभी नाश्ता किया है और लंच का ऑर्डर कर दो. All right, let's get to the business of the World Cup. What a fantastic game last night, Wasim. Yeah, fantastic game for India. I mean, we spoke about that game last night in length for a couple of hours before and after. What a performance. Congratulations to India to qualify for the finals without any hiccups. मेरा नहीं ख्याल किसी में मैच में apart from the first game they played or second against Australia in Chennai when they were chasing 200 or something and they lost 3 wickets. That was the only time they had pressure on them, but otherwise 10 games they played so far. Winning literally one-sided. Invincible. That's what their performance has been like throughout this World Cup. आइए जरा मैच समरी के ऊपर नजर डालते हैं. This is how it went down yesterday in Mumbai. It was Rohit Sharma who won the toss and elected to bat, and they batted really well. 397 for 4. You know, not many people are going to remember when they look at that scorecard. They'll say Rohit 47, but that 47 is what really set up India for that big 397 for 4. And would always be appreciated. Rohit doesn't go after records. He doesn't want to, you know, if he's not making the centuries, that's fine with him. As long as his team is winning, as long as his team gets a winning start, he's okay with that. And that's how captains lead. Outstanding work by Rohit Sharma and his boys there. And in response, New Zealand, they did try to make a match of it. One special partnership there between Mitchell and Williamson looked really, really dangerous at one point, but it was not to be. It was India winning this one by 70 runs, and that's how semi-final number 1 came to an end. And today is semi-final number 2, and this is the match that we have for you coming up in just a little while. South Africa versus Australia, 2 top-tier teams, 2 fantastic teams. They're going to be going head-to-head in Kolkata at 1:30. हम आपको यहाँ से बराह रास्त लेकर चलेंगे कोलकाता में. But before we talk about the match, Wasim, the news coming out of Kolkata is it's wet, it is cloudy. और स्टेडियम के कुछ शॉट्स हैं हम आपकी स्क्रीन के ऊपर भी लेकर आते हैं. ये आप देख सकते हैं वसीम. लुक एट दैट, द कवर्स आर अप. Yeah, the good sign is Fakhar that at least they covered the whole ground. It means कि जब भी बारिश रुकेगी उसके तकरीबन आधे पौने घंटे बाद मैच स्टार्ट हो सकता है. So that's a good sign, and I think every cricket playing nation should learn how to cover. Like Sri Lanka started that trend. We've seen this Asia Cup. The groundsmen really worked hard. It's a hard work to cover the whole ground. But with that, obviously काफ़ी लोग ये भी कहते हैं over the years, मैं सुनता रहा हूँ सोशल मीडिया पे जनरली कि ये वो स्टेडियम वो रूफ के साथ क्यों नहीं बनाते, डोम वाले क्यों नहीं बना देते, डोम वाले. But that's too expensive to maintain as well. Okay, multi-purpose stadiums हों जैसे मेलबर्न में है. I remember playing an exhibition game in Toronto. You were there as well. वहाँ पे भी है. Then one I played in Cardiff. वहाँ पे भी है ये. But वो multi-purpose है वहाँ. I think football भी होता है, rugby भी होता है. They're really amazing, these covered stadiums. Yeah, Melbourne one की छत, I think इनकी छतें खुल जाती हैं. If it's not raining, they open up the roof, and if it rains, they shut down the roof, and it's beautiful. Did you ever play at the Houston Astro?
because we played at the Astro. It's an indoor dome as well. It was a friendly match, showbiz. Okay. But the roof is so high because one would say कि यार वो अगर छिक्का उच्चा बज जाए तो पता नहीं कहाँ No, जाए. but You just can't reach. Melbourne में the Big Bash games, we played a one-day cricket there. If you hit the roof, it's a sixer. Oh, is that Yeah, so? that's the law. Oh wow, that's Yeah. amazing. But it's quite high. I think एक दो ये Maxwell वगैरह शायद Finchnell मारा भी है. I think with the way India's stadiums जो पूरे World Cup में हमने देखे हैं, I Yeah. think if anyone is going to have these covered stadiums, it'll be No, India but first. covered stadium will probably, it's not feasible. I suppose हमारे यहाँ weather all year round ठीक रहता है compared सही, to Europe, maybe. England में especially it rains a lot more Yeah. than anywhere in cricketing playing nations. Or maybe वो भी rainy season में होता है India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh. That's couple of 3 months in off. Monsoon का जो time होता Yeah, है. that's why it's not. I think sensible to invest so much million of dollars in our part of the world. Maybe in England, yes, it might work. But again, you also say cricket में आपको ये जो natural elements होते हैं, वो also भी game का course change करते हैं. Cloudy weather तो seam होता है, sun है तो it's flat for batting. So वो फिर चीजें खत्म हो जाएंगी उससे, I suppose. How much? मेलबर्न का याद है आपको जब Yeah. हम लोग तीन में से 2 ODIs खेले थे. Yeah, it was freezing. It was in June. हाँ, it was like in minus temperature, minus में रखा हुआ था उन्होंने अंदर. No, अंदर नहीं, because there's a parking under the thing, under the stadium. Okay. So parking से जो नीचे हवा ऊपर ground में आ रही थी ना, at the, we felt, Yeah. we played 2 games there and I had 3 thick socks on, Achha. but I felt my feet weren't there with me. They were so numb. Oh, that was रूफ वाला कंपटीशन किया था हम 3-4 Yeah, we लोगों did, we ने. did. थ्रो मारने की कोशिश की थी लगी? ऊपर. हाँ, सिर्फ एक बंदे की लगी. लाला की. Oh, had to be Lala of all the people. Right. So, how does this weather impact? Who gets the advantage of this weather? अगर इस तरह का weather है, बादल रहे हल्के से और हल्की सी temperature low रहा, who gets the advantage? South Africa or Australia? Because both have sensational fast bowling. आई थिंक दोनों टीमों की जो कंपोजिशन है वो एक तरह की है. दोनों अपने फास्ट बॉलर्स पे डिपेंड करती है. अगर मॉइस्चर पिच में है या थोड़ा सा एयर में है और कुछ हेल्प मिलेगी तो साउथ अफ्रीकन बॉलिंग फास्ट बॉलिंग भी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रही, सीम कर रहे हैं, थोड़ा स्विंग भी हो रहा है बॉल. ऑस्ट्रेलियन भी इसी तरह टॉप क्वालिटी बॉलर हैं 3 उनके पास. तो आई थिंक ओवरऑल कंडीशंस तो दोनों के लिए सेम होगी. बट ट्रिकी ये हो जाता है ऐसे वेदर में, टॉस पे बहुत इंपॉर्टेंट फैसला आ जाता है कि अब कितना मैच होगा. 15 ओवर 20 ओवर का मैच मिनिमम होता है. Ideally would नॉर्मली be batting टीम्स second. नॉर्मली टीम चूज़ करती हैं टू बैट सेकंड, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो टॉस जिस तरह इस पूरे वर्ल्ड कप में हो रहे हैं, वो एशिया कप में जो पाकिस्तान के साथ हुआ, ऐसे वेदर में टॉस जीत के बॉलिंग की, पता चला वो उस दिन तो मैच नहीं हुआ, अगले दिन पूरा मैच हो गया. वो आपको नुकसान हो. लेकिन वो साउथ अफ्रीका जो है वो क्या करेगी. बड़ी मुश्किल डिसीजन है वो तो दे स्ट्रगल व्हेन दे बैट सेकंड. Yeah. तो वो मतलब कंडीशन में क्या करेंगे वो. I mean the ratio question is rate 91% when they bat first, winning ratio. Yeah. It already happened to them against Netherlands. उस मैच में भी ऐसी फोरकास्ट थी और उन्होंने बॉलिंग कर ली और बाद में पता चला मैच उल्टा पड़ गया पूरा. All right, hold that thought right there. We'll talk about that in detail, but once we come back from the break. Welcome back to the Pavilion. मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports and Sports in the Airways app. It's semi-final number 2, Australia versus South Africa, and we will be taking you to Kolkata live for that match. कोलकाता में इस वक्त थोड़ा सा मौसम जो है वो बारिश हुई है, कवर्स हैं ग्राउंड के ऊपर. तुसी गुड्डी उड़ानी होते हैं. नहीं, मैं इतनी गुड्डी उड़ा नहीं पाया. It's okay. But वैसे by the way, clear the one who's really good at flying goodies Yes. is Shoaib. Shoaib Yeah, is I really, know. he knows Shoaib how तो to do दुबई this. में भी कह रहा था उड़ाता जी है. दुबई में अब सिर्फ दुबई में ही उड़ा. Shoaib, here's my quick question. Door allow करते हैं आपको वो वाली जो हम यूज करते हैं जो पाकिस्तान में जो बड़ी तेज धार की होती है in Dubai? Is that allowed there? Yes, It yes. is allowed. But It they is have to allowed. go to a certain area. Certain area. You have to stay जी in जी a certain fly. area. वो आप थोड़ा सा सिटी से बाहर जाना पड़ता है. Yeah. जहाँ पे you need like 4 से 5 It'll किलोमीटर be का very weird पैच. if you see a पतंग लटकी हो ये बुर्जुल अरब नाल. That won't be a good picture. मैं जब से ये एरिया से जहाँ लगा वहाँ पे बाइक वाले अलाउ नहीं. जब से ये प्लास्टिक की डोर जब से आई ना केमिकल जो Yeah, जिसने बिल्कुल ही ये वैसे भी नहीं, डेंजर. नहीं, Let me tell you, as a young kid, for me, Basant was the ultimate. Absolutely. मुझे 2 हफ्ते पहले नींद नहीं थी आती.
पैसे जमा करके भाइयों से ले, डैड से, मॉम से, नानी से गुड़ियाँ ले रहे हैं, फिर पिन्ने रात लेने। को तनाए डाल रहे हैं। पिन्नों तक तो जब बात ही नहीं थी पहुंची, गिट्ठा। अच्छा गिट्टो पे चल रहे थे हाँ, आप? पैसे पिन्नों के लिए कहाँ थे, बट यू नो नाइट पहले आप सोते नहीं थे, 5 बजे उठ के द फर्स्ट काइट, द म्यूजिक, द होल फैमिलीज, The festivities. जो केमिकल का इसने जिक्र किया उसके बड़ा बाद कर से दिया उसने, बिल्कुल। वो फेस्टिवल का भी सत्यानाश मार दिया है। And became dangerous, बहुत ज़्यादा लोगों की- पीपल गेट किल्ड। ट्रेनिंग तो की है, लेकिन इससे भी बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि छोटे होते हुए देखते थे दूर कोई जा रही है ना, कटी हुई उसको गुड्डी, भागते थे उसके पीछे। प्रिंट लगानी है उसके मैंने तो गुड्डियाँ लूटी बड़ी हैं। बड़ी लुटी है। और वो there's a word for it लाहौर में, झांझा, वो जो आगे डंडा पकड़ के आगे वो कीकर का तोड़ के ना कांटों वाला वो लगा के। ऐसे क्योंकि Yeah. लंबे लड़के भी आ जाते थे ना, वो ऊपर से ही ले लेते हाँ, थे। बड़े भी आए, रेड के कुछ ग्रैब। वर so तेज in every group there was one, उसको सबसे पहले डोर नजर आती थी। So- used to guess, am I right? इधर वहाँ है, इधर डोर है। फखरे आलम होना ना। and it was you know the amount of tourism that Basant brought to I Lahore. remember Lahore. The city of Lahore used to be Parties, everything hotels, was- 5-star की roofs were booked. Every Yeah. roof in Lahore के अंदर, defense with Moral Town. It was amazing festival. Just I know this is out of context a little bit here, but I just want to say instead of banning things, कि यार इसको outrightly बंद कर दो. I know कि ये डोरे They बड़ी must have खतरनाक tried. है. Government must have tried. Yeah. It was People don't dangerous. listen. Yeah, people don't listen. became That's the losing their problem. lives, यार. Yeah. Just became dangerous. हर आपको दूसरे दिन पता चलता Dangerously, था। actually, Misbah, there were deaths that happened. हाँ जी, Motorcyclists जो बिल्कुल, थे वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होते थे केमिकल के कि अलावा गर्दन फिर पे ये डोर क्या फिर करते गई हैं है कि they would- अगर गुड्डी उड़ानी है, अगर पैसे नहीं है तो ना उड़ाओ, फिर आगे ये तांबे की तार लगा देते थे ताकि वो कटे ना। उफ वो So, वो काटा जब कटती थी, जो अगली की तांबे की जो पतली सी तार आगे होती थी, वो कहीं किसी को लगती थी बाइक पे, तो नहीं you know, एक्चुअली इसके वो तांबा नहीं अलोन Whatever. नॉर्मल डोर भी जो Yeah, थी ना वो भी। वो मोटरसाइकिलिस्ट बहुत सारे हैं जिनकी स्लिट हुई है थ्रोट जिसके बाद डेथ्स हुई हैं तो उन्होंने बंद कर दिया स्ट्रेच होती है नायलन टाइप, Right. टूटती नहीं है तो वो डेंजरस है। दूसरी डोर तो टूट जाती थी तो नहीं, वो अब So I have जो to- डोरें आ गई हैं ना, वो नहीं टूटती हैं। I वो used वही है ना केमिकल हाँ, प्लास्टिक। नहीं केमिकल नहीं, प्रॉपर डोर। proper डोरें आ गई हैं but I have to tell you also another very important thing कि I was hosting a show called Top of the Pops that was music show and बसंत का चूंकि बहुत बड़ा फेस्टिवल होता था concerts होते थे बसंत के लिए Absolutely. लाहौर में होते Yeah. so we were there for a lot of coverage and being an aviator I told my producer कि जी I'd like to fly over Lahore to take a unique angle of kite flying from that and वो बड़ी मुश्किल से एक जहाज हमने जो है वो रेंट किया वॉल्टन एयर पे लाहौर फ्लाइंग Yeah, क्लब से yeah. and we went out flying and guess what me and the other gentlemen who were flying and we had a camera crew with us we showed on TV afterwards वो इतनी सारी डोरें हैं जो जहाज पे फिरी हैं विंग के टिप्स पे लीडिंग एज के ऊपर and they would actually cut into the metal of the aircraft right that's how dangerous these things कौन सी can हाइट be. पे लाइक फ्लाई we were maintaining 3,500 feet and then coming down वो शॉट लेने के लिए थोड़ा बादशाही मस्जिद के करीब आते थे नीचे लेकिन 2,000-2,500 फुट कोई मसला नहीं होता था वो But it's, हमसे भी ऊपर होती थी 4,000 फुट के ऊपर इट्स उड़ रही होती थी अनफॉर्चुनेट कि इतना ज़बरदस्त फेस्टिवल जो कि मेरे आई थिंक बचपन की बड़ी यादगार हैं यादें बट देयर इज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन ह्यूमन लाइफ Yes, no question about that. Absolutely no question about Safety, that. Safety first. Let's talk about Australia in this. Coming back to the World Cup, we have semi-final number 2, Australia versus South Africa. Australia की बात कर लेते हैं. After a little choppy start for your Susral, basically, Yes, the team yes. just remembered that's also going on here. This is another thing. luckily I have plan A, plan B. Plan A was Pakistan, obviously. Now plan B is Australia for me. I know, we're with you on that one. For Australia, थोड़ा सा wobbly start हुआ, but now they've gone 7 games undefeated. Yeah, that's Australian cricket for you. That's Australia for you. They never lose hope. They fight till the last ball. They're physically fit. They're mentally strong. And that's why they've been so consistent. I think, if I'm not mistaken, 5-time world champions in ODI. Yeah. And that shows, and recent form 7 out of 7. It'll be a टक्कर का मैच होने वाला है आज. टॉस वो जैसे मिसबा ने कहा, शोएब ने भी, मोइन ने भी, कि डिपेंड करता है कितने ओवर का मैच होता है. आज का जो लॉ है वो ये है कि आज 20 ओवर तक मैच हो सकता है. सही. उसके बाद फिर इन्हें दोबारा कल आना पड़ेगा. अगर मैच एक दफ़ा शुरू हो जाता है और कल जब शुरू करेंगे तो वहीं से शुरू करेंगे जहाँ ख़त्म हुआ है. Once it starts. Yeah. So अगर that's मैच नहीं होता then South Africa will qualify because they were on the top on the table. yeah, they were ये on भी the बताएं table. why? on the table top on the points पॉइंट्स table उनके पे ज़्यादा top हैं. है. अगर वो नहीं ज़्यादा तो रन रेट ज़्यादा होता. जिसका भी होता, that team would have qualified. Well, talking about Australia, we have a feature here, their journey
to the semi-finals. This is Australia's journey to the semi-final. There you have it. What a journey for Australia. With that, we're going to take a break here on the Pavilion, but when we come back, there's more on the other side. Stay with us. Welcome back to the Pavilion. You're watching A Sports and Sports in the Airwise app. We're talking about semi-final number 2. It's Australia versus South Africa. Break पे जाने से पहले हम लोग ऑस्ट्रेलिया की हवाले से बात कर रहे थे. And their journey, we showed you a feature, was really nice. Let's dive deep into the Australian team today. हमने कहा कि 7 undefeated matches that they've had behind them to come into the semi-final now after a wobbly start was seen. Ji. Do they make any changes today? Are you anticipating them to be taking I think on? from the previous game, they'll definitely got to play Maxwell and then Mitchell Starc. They will come in. Now, the big question would be, will they drop Labuschagne or Smith? Yeah. Because Mitch Marsh is in great nick and he's well settled as an opener. और पांचवा बॉलर तो मैक्सवेल होगा या स्टोइनिस खेलेगा या वो होगा. मेरा नहीं ख्याल है. अच्छा. Abbott and Stoinis. क्यों? आपको वही क्यों? Abbott. Sorry, not Stoinis. Abbott. Okay, but क्यों? Abbott played. और सेकंड चीज I think इनके पास ऑलरेडी जिस स्ट्रेंथ से जा रहे थे उसमें मैक्सवेल एज अ 6th बॉलर को यूज कर रहे थे. फिफ्थ बॉलर को यूज कर रहे थे. बट दे हैव ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ 6th बॉलर. आई थिंक वो ऑप्शन नजर आते हैं. इसी वजह से मैं समझता हूँ कि ये 2 जो चेंजेस जो अभी वसीम भाई ने बताई, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस होंगी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के लिए. मैक्सवेल द मैन इन फॉर्म, रेस्ट कराया था उनको. एंड देन सीमर आई थिंक मिच मार्श होते हैं उनके पास. मिच मार्श भी, बिल्कुल मिच मार्श भी मौजूद है. बेसिकली 5th और 6th बॉलर जो है उनके मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड और ग्लेन मैक्सवेल. कैमरून ग्रीन नहीं खेल रहे हैं. स्टोनिस जो है वो भी आज मोस्ट प्रोबेबली चेंज होगा क्योंकि 2 लोगों ने बीच में आना है. तो ये 3 लोग जो हैं, ट्रेविस हेड, ग्लेन मैक्सवेल और मिचेल मार्श, ये इनके 5th और 6th बॉलर हैं. Weakness in Australian camp, that's it. Yeah, that's the 5th bowler जो शेयर होता है 3 bowlers में जो शोएब ने अभी नाम But दिया. I think the way Maxwell is bowling throughout the World Cup, I mean, 2015 में भी ऐसे लगता है कि मैक्सवेल इजी बॉलर लगता है. बट द वे ही बॉल नॉर्मली बॉल्स 2 ओवर इन द पावर प्ले ऑल्सो. लेफ्ट हैंडर आते हैं, इवन राइट हैंडर्स को बहुत स्मार्ट बॉलिंग करते हैं. वो इतना आसान बॉलर नहीं है. विकेट्स भी ले जाते हैं. पहले ओवर द विकेट करते हैं. वहाँ पे जब बैटर सेट हो जाएं तो फौरन राउंड द विकेट चले जाते हैं. तो वो सेटल नहीं होने देते क्योंकि उनको भी पता है प्रोएक्टिव हैं एज अ टीम भी और एज अ बॉलर भी. जो उनके 5th और 6th बॉलर हैं वो क्या करते हैं कि चेंज करते रहते हैं. उनको पता है कि टीम्स जो हैं वो दे गोना कम आफ्टर अस. तो उसमें वो क्या करते हैं, वो प्रोएक्टिव स्ट्रीट स्मार्टनेस वो यही होती है कि वो सेटल नहीं होने देते, अपने एंड्स चेंज कर लेते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है कि आपके पीछे दूसरी टीम आएगी. वो प्लान करके आए होंगे कि ये कॉम्बिनेशन से आप जा रहे हैं. टारगेट किया होता है ना, टारगेट किया होता है क्योंकि बाकी जो उनके 4 बॉलर हैं जिसमें जॉश हेजलवुड हैं, मिचेल स्टार्क हैं, पैट कमिंग्स हैं और एडम ज़ैम्पा, ये उनके मेन बॉलर्स हैं जिन पे वो बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं. जैसे क्रंच सिचुएशन में मैच जाता है तो इन 4 में से कोई आके जो है वो बॉलिंग करता है. थोड़ा सा वर्ल्ड कप में हमने देखा है पावर प्ले में विकेट लेने का इशू रहा है. पहले 10 ओवरों में सिर्फ 11 विकेट ली इन्होंने, जितने भी अभी तक 9 प्लस 8 10वां मैच होगा इनका. सो वो प्रॉब्लम है. हालांकि नए बॉल से बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करता है हेजलवुड. बैक ऑफ अ लेंस, बोथ सीम्स बोथ वे. मिचेल स्टार्क कम्स इन 145 150 प्लस. उसका इतना नया बॉल अभी स्विंग नहीं हो रहा. But and Cummings is also struggling. Cummings the captain is struggling. एक चीज जो है वो है आज पर्टिकुलरली जिस टीम के आप अगेंस्ट खेल रहे हैं, देयर बॉलिंग अटैक एज वी ऑल सेड कि वो बहुत अच्छा है. और वहाँ उस बॉलिंग अटैक को टैकल करने के लिए आपको कन्वेंशनल क्रिकेटर्स चाहिए आपकी बैटिंग लाइनअप में. तो मानस लबुशैन और स्मिथ और वार्नर, ये 3 बंदे ऐसे हैं, इनमें से आज एटलीस्ट 2 लोगों को रन्स करने पड़ेंगे क्योंकि मोस्टली ऑस्ट्रेलिया जो है हाईली रिलाइंग ऑन ऑलराउंडर्स. तो जब उनके सामने रियल पेस आती है, मिचेल मार्श के सामने नहीं, जो बाकी के हैं, तो दे स्ट्रगल, थोड़ा सा वो स्ट्रगल करते हैं. तो जो कन्वेंशनल क्रिकेट खेलने वाले हैं वो उसमें वार्नर, मानस लबुशैन और स्टीव स्मिथ, इन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा. वो चाहे पहली बैटिंग हो चाहे दूसरी बैटिंग हो ऑस्ट्रेलिया. ये दोनों इनका खेलना बहुत ज़रूरी है. ऑस्ट्रेलिया इनको लाजमी खिलाता है, स्टीव स्मिथ और लबुशैन, क्योंकि मिडिल ओवर्स में आपकी बाकी सारी बैटिंग टॉप 3 अगर देखें वो बहुत फ्रीली खेलते हैं. वो दे जस्ट गो आफ्टर द बॉलिंग.
तो उनको बीच में ऐसे बंदे चाहिए कि जो थोड़ा सा, जैसे इंडिया की टीम में अगर आप देखें उनके 3-4 बैट्समैन ऐसे हैं कि जो अगर खड़े हैं तो वो स्कोर बोर्ड को लेके भी जाते हैं और लंबा खेलते हैं। तो आई थिंक इनके पास 2 हैं, फिर नीचे 6ठे नंबर पे मैक्सवेल आ जाते हैं। तो ज़रूरी है, मेरा नहीं ख्याल कि इन 2 में से वो किसी को छेड़ेंगे यहाँ। How good has been Adam Zampa, Moin, throughout? शुरुआत उनकी बड़ी अजीब सी हुई थी, but once he got going, he became one of the key factors for Australia for this campaign. अभी जब हम देख रहे थे, एक फीचर चल रहा था प्रोग्राम का, जो चीज़ 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मेरे कानों से गुजरे, वो एक था फन, दे आर एंजॉइंग इट, ठीक है, एंड दे आर टेकिंग एज एन अपॉर्चुनिटी। हर प्लेयर का फेलियर ज़रूर होता है, और आप ओवरकम करने के लिए आपको नेचुरली उस पोजीशन में, उस सिचुएशन में आके अपने आप को एंजॉय ज़रूर करना पड़ता है। बिकॉज कि अगर आप एंजॉय नहीं करेंगे उस सिचुएशन को, उस मोमेंट को, आप ऑलवेज आपके ऊपर बहुत ज़्यादा और प्रेशर आ जाएगा। आई थिंक उन्होंने सिंपली अपनी जो प्रॉब्लम आ रही थी, जहाँ पे पहले हमने 2 मैचेस में देखा जैम्पल ऑफ स्टम्प, आउटसाइड द ऑफ स्टम्प बॉलिंग कर रहे थे, बट उन्होंने फ़ौरन उसको चेंज किया, आके विद इन द स्टम्प बॉलिंग करनी शुरू की, क्लोज टू द स्टम्प बॉलिंग करनी शुरू की, एंड दैट्स हाउ ही गेट्स द सक्सेस। लाइक उनका जो फ्लिपर, गुगली, इवन द लेग स्पिन वाज थोड़ा क्लोज टू द स्टम्प्स, वहाँ से ब्रेक कर रहे थे, और इसी में सक्सेस मिली है। और जहाँ पे बैट्समैनों को प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि आप हिट मारने जाते हैं, देन यू गेट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जिस तरह बॉलिंग की है, लाइक टोटली थोड़ी सी लो ट्रैजेक्टरी पे भी बॉल की है, सम टाइम ही यूज द पेस ऑल्सो। तो आई थिंक इतना ईजी नहीं होता है, एंड ही इज़ अ टॉप क्लास बॉलर। ओपोनेंट जो आपके खिलाफ खड़ा होता है उसको भी पता है विकेट टेकिंग बॉलर है, तो आप रिस्क इतना ज़्यादा नहीं लेते, आप इनडिसाइसिव होते हो, डबल माइंड हो जाते हो, उसी में आपको विकेट मिलते हैं। आई थिंक ही came on the basics within the stumps, ये उनकी success थी इस tournament में। We're talking about Adam Zampa. We've got him with us right now. Let's listen in. All right, with that, we're going to take a break here on the Pavilion. When we come back, we're closer to the action. Stay with us. Welcome back to the Pavilion. It's semi-final number 2, Australia versus South Africa. हम इसके बारे में बात कर रहे थे. Just a few things that we let's discuss. Head-to-head count जो है वसीम बड़ी interesting है दोनों टीमों की. 7 times they have faced each other in a World Cup game. 3 times won by Australia, 3 times by South Africa. Once it was tied. जी. एक तो ये हो गया. दूसरा, South Africa has never made it to a World Cup final. Yeah. And Australia have only lost 1 semi-final in their entire history. Interesting. I think this is all past. It all depends कि प्रेजेंट फॉर्म क्या है, प्रेजेंट माइंडसेट क्या है दोनों टीमों का। अगर रिसेंटली देखा जाए, रिसेंट पास्ट में देखा जाए, तो भी जो सीरीज साउथ अफ्रीका में हुई थी ऑस्ट्रेलिया की 5 वनडे में, ऑस्ट्रेलिया वर 2 up and then they lost the series 3-2. and that's where the world got to know Klaasen कि what a player he is। अगर वो नहीं चला भी 3-4 मैचों में, ऐसा प्लेयर चल गया तो अकेला ही मैच लेके जा सकते हैं, लाइक मैक्सवेल डिड अगेंस्ट अफगानिस्तान। सो ही इज दैट सॉर्ट ऑफ प्लेयर। सो सेमीफाइनल बैक ऑफ द माइंड ऑब्वियसली उनके जेहन में होगा साउथ अफ्रीकन टीम के कि उनका टैग क्या उन पे लगा हुआ, वो सोशल मीडिया पढ़ते हैं, वो चाहेंगे कि ये टैग किस तरह उनसे हटे। द ओनली वे वो टैग उनसे हट सकता है टू ट्राई, आई मीन टू विन द गेम टुडे एंड क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स फर्स्ट टाइम। Fun bit of trivia also, guys. This is the 3rd time these teams are meeting in a semi-final of the World Cup, the highest between 2 teams ever. So that's interesting. Yes, Shrev, please. एक क्वेश्चन है सबसे, वो ये है कि जैसे क्लासन की आपने वसीम भाई बात की, या ग्लेन मैक्सवेल है, या इस तरह के जो पावर हिटर्स हैं जो आपसे गेम को दूर ले जाते हैं, जो अगर एक लेट्स सपोज एक जो कंडीशन है वो उस पे 300 रन बनने चाहिए, लेकिन ये ऐसे बैटर्स हैं, ये पावर हिटर्स, ये उस 300 को उस पिच पे 350 पे ले जाते हैं, 350 पे ले जाते हैं। Right. तो इनके लिए क्या प्लान होना चाहिए कैप्टन का कि ये आते ही इनको डेथ ओवर्स वाली बॉलिंग शुरू करके डेथ फील्ड प्लेसमेंट वाली कर देनी चाहिए, ताकि इनकी विकेट किसी तरह बाय की जाए, ये वाला? डेथ बॉलिंग इज बिट ऑफ अर्ली ऑन टू एनी बैटर इन एनी फॉर्मेट। मोस्ट ऑफ द टाइम डेथ बॉलिंग करने से क्या होगा, अगर 3 विकेटें गिरी हैं, अगर आपने वो शुरू कर दिया तो इट मींस आपने उसको सेट ही कर दिया, वो 2-4 ओवर में सेट हो जाएगा, इट विल बी मोर डेंजरस देन ये बाउंड्री वाले फील्डर नहीं काम करेंगे। तो फर्स्ट आई वुड डू टू अटैक, पहले 4-5 ओवर जो भी स्लिप रखनी है अर्ली ऑन, जो स्पिनर मेरा लगा हुआ है, चांस लूँ इनको मैं थोड़ा सा मे बी मिड ऑन ऊपर लेके लेग ब्रेक कहूँ कि ऑफ स्टम्प के बाद बॉल का ज़रा थोड़ा छोड़ के छिक्का मारने दे मिड ऑन की तरफ, चांस लेते हैं। सो इस तरह की चीज़ें करूँ, देन आई गो टू प्लान बी। मोइन भाई, आप क्या करें? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने पैटर्न देखना उस बैट्समैन का। जैसे
एग्जाम्पल दूंगा And situation, when he comes out to bat. विराट कोहली है जैसे एक मैच में जहाँ पे वो जल्दी आउट हुए, क्या हुआ है, इंग्लैंड ने प्लान क्या किया कि अर्ली ऑन स्ट्राइक रोटेशन नहीं होने दी। तो पैटर्न है कि ये सेटल हो जाते हैं, इनको अर्ली ऑन अगर आप सिंगल्स दे दो 2-3, दैट्स हिज कंफर्ट जोन। उसको बिल्कुल बाउंड्री खैर है मार लो, स्क्वीज किया एंड देन ही हैज़ टू प्ले दैट शॉट। तो इसी तरह जो हिटर है वो अदर वे राउंड है। आप देखेंगे कि नॉर्मली क्लासन आगे क्या करता है, अर्ली ऑन वो क्या चाहता है कि मुझे क्या चाहिए। व्हेन यू जस्ट बेसिकली मेक हिम टू डू समथिंग एल्स, कि यार अपने कंफर्ट जोन से पहले मतलब 2-4 सिंगल तूने लेने हैं वो नहीं देने। जैसे आपने बात की कि मैं डॉन ऊपर रखनी है, आते ही तुम कंफर्ट जोन से निकल के कि हाँ छिक्का मारना मारो। सो दैट सॉर्ट ऑफ लिटिल गेम्स कैन हेल्प यू टेकिंग विकेट्स। जैसे मलिक ने कहा बहुत ज़रूरी है, ऐसे बैट्समैन को अपने पैटर्न पे खेलने देंगे ना तो एक टाइम आएगा जब गेम आपसे ले जाएगा। ऑलराइट, वसीम भाई ने अच्छा डिस्क्राइब किया। आई थिंक नेचुरली जब कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा बैट्समैन, इन फॉर्म बैट्समैन भी हो, दे ऑलवेज टेक टाइम। तो वही टाइम होता है बेसिकली अगर आप अनयूजुअल थोड़ी सी फील्डिंग उनको उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की कोशिश करें तो उसमें ही आपको चांस होता है कि आप उसको आउट करें वहाँ पे, एंड दैट्स हाउ यू कैन पुट प्रेशर ऑन द ओपोनेंट्स। अगर सेट हो जाए जिस तरह के बैट्समैन है जो हम देख रहे हैं, जिस तरह की दोनों लाइव इमेजेस आ रही है ग्राउंड से, कवर्स हटाने शुरू कर दिए इन्होंने, एज यू कैन सी। That's a good sign. That's a good sign. Which looks good too. Yeah. ये ऐसा ही पिच था जो जब हम लोग 2016 में पहला मैच इंडिया के अगेंस्ट खेले हैं, अच्छा तो हम ODI? हाँ बारिश हुई थी ऐसे ही, Right. ऐसी बारिश हुई थी। वी वर अनश्योर कि मैच होगा नहीं होगा, फिर जब मैच हुआ तो हमने 4 पेसर डाले, उथे एना ब्रेक हो रहे थे। Oh, okay. So that's what you're those are- anticipating, Shoaib? या ऐसा ही पिच था वो भी, ऊपर से बिल्कुल ऐसा लग रहा था ड्राई पिच है। ब्रेक हो रहा था या मॉइस्चर था उसकी वजह से ग्रिप वो कर रहा था? क्योंकि धूप लगी नहीं थी पिच को और ऊपर से ऐसा ड्राई लग रहा था, बड़ा फर्म लग रहा था पिच। लेकिन वो पहला ही ओवर मेरा हाल अश्विन ने अश्विन ने किया किया, Right. वो पहला यूं करके ब्रेक हुआ है उसको बॉल, उसके बाद जो है उसके फिर बाद वो ब्रेक ही तितर बितर हो गई थी। सेकंड इनिंग में बेहतर हो गया था, तो इट मींस कि दैट वाज लिटिल बिट ऑफ मॉइस्चर एट द टॉप, वो ग्रिप उसकी वजह से सेकंड इनिंग्स में भी ब्रेक हो रहा था बॉल, लेकिन वो मायनो आ गया सी, कोहली आ गया सी। रास्ते में कोहली आ गया था आपके। All right. So the good news is that the covers are being removed in Kolkata, and we are definitely going towards the game. Let's talk about the South African captain Temba Bavuma. Wasim, he had a bit of a hamstring issue in the last game. थोड़ी सी इंजरी उन्होंने वो की, but he's a very important and integral part of this South African team. He is. Even though he's not been delivering the goods in terms of with his batting, but he's been leading the team really well. इस वर्ल्ड कप में आई थिंक से पहले वो ठीक ठाक फॉर्म में था। जी। really played well, but obviously is and he's got a bit of a hamstring। ये उनका फिटनेस टेस्ट हो रहा है जो हमें बताया गया था कि सुबह इनका फिटनेस टेस्ट होगा। आई थिंक ईदर वे इफ ही प्लेज और इफ ही डजंट प्ले, साउथ अफ्रीकन टीम इज स्ट्रॉन्ग। अगर ये नहीं खेलता तो रीजा हेंड्रिक्स आ जाएगा, Right. who is also a very good player and a gun fielder like the skipper, and इसका वो राइट अप था देखें था दैट वो हैमस्ट्रिंग मसल इसका पुल हुआ है। बट हैमस्ट्रिंग का ये प्रॉब्लम है कि 2-3 दिन में लगता है ठीक हो गया है। आप नेट में बॉलिंग भी कर लो नहीं पेन होती, आप नेट में रनिंग स्प्रिंट भी मार लो नहीं पेन होती, वो मैच में दूसरा बॉल करोगे वो खिंच जाएगा। नहीं, असल में वसीम भाई सबसे जो बड़ा एज ए बैट्समैन को मुझे हुई है 2-3 दफ़ा। होता क्या है, जो आपकी एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन है ना, उसमें आपको सबसे ज़्यादा हर्ट करती है। Yeah. क्योंकि आप एज ए बैटर आपने जब जाना है एकदम आपने स्टैटिक पोजीशन से बॉल खेल के एकदम एक्सेलरेट करना है Yeah. और फिर रुकना है, उसमें आपकी हैमस्ट्रिंग और जो काफ है ना, ये बहुत आप सीधा जितनी मर्जी स्प्रिंट कर लें क्योंकि ग्रेजुअली आपने पिकअप करना होता है। सबसे ज़्यादा मसला होता है जब आपके पास बॉल आता है और आप झुकते हैं। क्योंकि मैं श्रीलंका में खेला हूँ, फील्डिंग में मैं खेला हूँ हैमस्ट्रिंग के साथ। आई प्लेड 5 ODIs, ऑलमोस्ट ब्लू था सारा हैमस्ट्रिंग। और तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आपको जब आप नीचे होते हैं बॉल को पिक करने के लिए, क्योंकि आपके हैमस्ट्रिंग सबसे ज़्यादा तब स्ट्रेच होते हैं कि जब आप झुकते हैं नीचे बॉल को पिक करने और के लिए। स्टेटस जब आपको पढ़ते हैं ना, वही मुझे तो 2 दफ़ा यही हुआ, आपने एकदम आप दौड़े हैं एंड देन यू हैव टू स्टॉप और फिर एक्सेलरेट, जैसे आप तो हो गया जी। और फिर hamstring, अब yeah, यहाँ पे ये है कि अगर आप एज अ प्लेयर हो और आप इम्पोर्टेंट हैं
टीम के लिए, तो आप इसको कैरी करके आप पता नहीं किस लेवल की है वो इंजरी खेल सकते हैं, बट जब आप लीडर हो उससे bowling तो भी हो उसमें सकती है, हाँ, लेकिन हाँ, little bowling wiggle भी in हो the सकती है, hamstring. लेकिन जब आप लीडर हैं तो उसमें अब आपने ये देखना है कि अगर आप खेल रहे हैं तो फिर आप फोकस आपका Because there's no हैमस्ट्रिंग runner पे नहीं allowed, होना चाहिए। because सबको पता है कि इंजरी है, Yeah. अगर इंजरी नो रनर भी नहीं मिलना और फील्डर भी नहीं मिलना, बिकॉज इंजर खेल रहा है और अगर आपके उसी- पास रिप्लेसमेंट भी है और Yeah, वो बंदा yeah. स्कोर करके भी बैठा है, तो आई थिंक जरा माइनर से भी अगर है तो इतने बड़े And मैच as a है, इतना captain, जहाँ पे आप you don't want to be a liability. Yeah. You Yeah, don't of want course. to go into Because the it's a knockout match, yeah. and half cooked, half injured, not knowing you're 100% fit or not, and get injured during the game. और Then the team. कैप्टन भी है 100%. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट 100%. एक और लफ्ज भी आ गया मुझे, हेमी स्ट्रिंग. हेमिस्ट्रिंग अपन लिख लो, लोगतिच लिख लो प्लीज। हम लोगत छापने लगे हैं। इसके बाद एक पूरी पेविलियन की, दिस इज द वैस्ट वोकैब के नाम से टाइटल रिलीज होगा ये, और आपके कॉर्नर बुक स्टोर पे दस्तयाब होगी ये किताब। इसकी एक अजय- बुक मानी जाएगी मेरा ख्याल है। वही तो कह जिसमें- बनी गई है, इतने सारे लफ्ज आ रहे हैं। अजय- We will have to review these words at some stage, Yeah, I either have the- सारा tonight in the post match or in Yes, the final yes, yes. post match. We have to Absolutely. talk about that. जी मिसबा, मैंने ब्रेक पे जाना है। हम एक बात कर रहे हैं ना कि इट्स गुड टू सी कि कवर्स आर जस्ट गोइंग ऑफ, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन में जो जिन टीमों ने खेलना होता है उनके लिए कोई अच्छा, क्योंकि आप चाहते हैं इतना बड़ा मैच है कि एक क्लियर पिक्चर हो आपके सामने कि पूरा मैच होना है, बारिश नहीं है, कुछ नहीं है, ताकि एक डिसीजन आप कर सकें। कहीं ना कहीं आपके माइंड में ऐसी सिचुएशन में जो है साउथ वो अफ्रीका doubts ने इतनी जरूर दफा तो ट्राई कर लिया, खेल खेल के नहीं पहुंच सके। अब दुआ करें बारिश की बगैर खेले पहुंच सके। यार मोहिन, really? ब्रेक ले लो। ट्रिकी मेरा डिसीजन ख्याल है मैं ब्रेक ले लेता हूँ। वो म्यूजिक चला चला के 2 दफा ब्रेक का म्यूजिक चलाया है, ये इस तरह वाला, और आप बीच में बोल पड़ते हैं। ठीक है सर, लोग We'll take a break. We'll see you on the other side. Welcome back to the Pavilion. It's semi-final number 2 that we're talking about from Kolkata. It's going to be Australia clashing with South Africa. Covers अब से कुछ लम्हे पहले रिमूव कर रहे थे, हम देख रहे थे, but we're just finding out that it started drizzling again. We're certainly hoping that we get to see a game of cricket. Getting back to South दिल में एक Africa. बहुत जोर से बात आ रही है. जी बोले। तू रिप्लाई कर देना लोकां नु ड्यूरिंग द शो. मैं कर देता ड्यूरिंग द शो, नहीं मैं ब्रेक में कर देता हूँ। आई रिप्लाई टू a few people during the break. I hope not. Yeah, I do the show would be actually. bit too much. Because here's the thing, I mean, you know, considering that in the break, the kind of conversation that Misbah is having, I'd rather reply to people on Explain, actually. elaborate. No need to elaborate. No, Misbah you तो do समझ actually. जाएगी। इस बार क्या बात कर रहे हैं यार? खाने की बात, वही खाने की पुरानी बात। इजी टारगेट खाना है। Easy target. Easy target. वो आप कहते हैं ना, मासूम है हमारा भाई वो आप यार। कहते हैं ना one job, one job। One job. Yes, मासूम ये है वो भी- हमारे भाई। Let's get to the job. We have a job in hand right पता now. है एक तरफ से फिर जवाब नहीं आना है तो टैग कर दो। Again, look, we're talking about Team South Africa. We've got a feature on South Africa. Let's take a look. All right, there you have it, the South Africa feature. And Wasim, let's talk about Quinton de Kock here. He's been fantastic throughout this World Cup for South Africa. Unbelievable. Yep. 400 so far in this World Cup, or 3? 400. 400s, and what a player. It's a treat to watch. Yeah. Love watching him, especially against the short ball. You know, as a bowler, क्योंकि जो back of leg, जो bouncer को वो जो मारता है ना एक shot, ये थोड़ी down leg side थी, जो pick up shot कहते हैं इसको. He's equally strong behind square, in front of square, offside as well. A complete package when we talk about This is the one you This is the shot I talk about. और मारता भी ऊंची है. जाती भी बाहर है. Spinner को is equally good. He's just a class player in every format. T20 ले लो, ये ले लो, Test matches ले लो. I mean, he's one of my favorite players in the world right now. As an opener, as a keeper, and unfortunately, I read before the World Cup, he has announced his retirement. Gee. From ODI cricket. ODI cricket, yeah, But cricket needs play like him. He's a treat to watch. How is it possible, Moin, that somebody who keeps the wickets for 50 overs and then bats like this, or bats like this, scores a century and then goes and keeps the wickets for 50 overs? Because it's quite, it takes a lot of toll keeping the wickets. सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट वो पैशन होता है, एंड देन ऑफ कोर्स फिटनेस कम्स फर्स्ट आफ्टर दैट. तो फिट है वो 50 ओवर कीपिंग करके, एंड विकेट कीपर की थोड़ी सी ये क्या जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो बेटर होते हैं, बेटर दैन दी अदर्स लाइक. तो उसका मेरा ख्याल है कि एक बड़ा एडवांटेज होता है इनको कि जिस तरह न्यू बॉल पे आके खेलते हैं, जिस तरह फ्लो में खेलते हैं, कॉन्स्टेंटली प्रेशर डालते हैं ओपोनेंट्स के ऊपर. आई थिंक
ऐसा प्लेयर होना लाइक किसी भी टीम के अंदर एक बड़ी ब्लेसिंग होती है उस टीम के लिए। जिस फॉर्म से ये गुजर रहे, 4 सेंचुरियाँ कर चुके हैं, हर तरफ, जैसे वसीम भाई ने भी बोला कि चारों तरफ शॉट्स खेल रहे हैं, बॉलर को पता ही नहीं लगता कि फिर मैं करूँ तो करूँ किधर गेंद, Yeah. बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। आई थिंक ट्रेमेंडस प्लेयर एंड वेरी अनफॉर्चुनेट एज वसीम भाई सेड कि इतनी कम उम्र के अंदर जो है वो ओडीआई से रिटायरमेंट ले लिया। आई थिंक जो फॉलोअर्स आई गेम के थिंक मिस उसको करेंगे। क्रिकेट साउथ अफ्रीका 10 लाख रुपए अनाउंस करेगी, वो वापस आ जाएगा। हो सकता है सबसे बड़ा डिफरेंस है, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है जो मलिक ने भी पहले नोट किया है कि इस दफ़ा नॉर्मली वो खामोश होता है, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व, लेकिन इस दफ़ा वो जिस तरीके से अपनी ना सिर्फ बैटिंग में, कीपिंग में भी, जब कहीं मिस फील्ड होती है, कोई बॉलर गलत बॉल करता है तो वो बाकायदा उसको ऐसे घुरी कराता है कि अच्छा ऐसे लग रहा है कि दे वांट टू जस्ट डू समथिंग स्पेशल। एक चीज़ ज़रूर है, ये बंदा रन्स करता है तो बाकी जो है वो बंदे रन्स भी बनाते हैं और साउथ अफ्रीकन टीम डिफरेंट नज़र आती है। ये जो मैचेस चेजिंग में मसला आ भी रहा है इनको, वो यही आता है कि जब ये आउट हो जाता है जल्दी, सो द होल बैटिंग लाइनअप दे स्ट्रगल। लास्ट मैच में ही स्कोर्ड 41 रन्स, तो वो चेज हो गया। तो थोड़ा सा 40 ये रन से। बहुत इम्पोर्टेंट है उनके बैटिंग लाइनअप पे, स्पेशली पहले तो जब बैटिंग करते हैं उसमें हैं ही वो, लेकिन जब ये चेजिंग में जाएं तो अगर ये रन्स बनाएंगे तो वो चेजिंग वाला एलिमेंट भी जो है साउथ अफ्रीका के साथ जो लगा हुआ है कि थोड़ा सा वो प्रेशर में आ जाते हैं, नहीं हो पाता चेज, वो चांसेस बढ़ जाएंगे इफ़ ही स्कोर्स रन्स इफ दे बैट सेकंड। But let me ask you this, Shoaib. So yes, I mean, बड़ी dependency है Quinton de Kock के ऊपर. But you do have class batsmen other than him in that South African lineup. You've got Markram there as well. He can take the game away all by himself. You got Klaasen there, जो कि अकेला, मतलब ये वो लोग हैं जो stand alone पूरी victory deliver कर सकते देखिए, हैं. नो डाउट दे वेरी गुड बैटर्स, बट वो एक सिचुएशन वाले बैटर्स हैं जहाँ पे उनको इजी मोमेंटम वाली सिचुएशन मिलती है, जहाँ पे गेम बना के फिर उसको एंड पे लेके जाना और फिनिश करना, वो कहीं ना कहीं उनमें मिसिंग है। वो सिर्फ हमें इंडियन बैटिंग लाइनअप में नज़र आता है कि उनको 3 डिफरेंट सिचुएशंस दो, दे नो हाउ टू टैकल दोस 3 डिफरेंट सिचुएशंस। लेकिन साउथ अफ्रीका के बीच में ऐसा वो है नहीं, उनको मोमेंटम चाहिए, ऊपर से मिला हुआ तो वो आगे गेम को ले जाते हैं। लेकिन जैसे प्रेशर में इनकी बारियाँ आएंगी तो इनको दे डोंट नो हाउ टू टैकल इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। हाँ, अगर लकी रहे तो उसमें से निकल आएंगे, लेकिन उसको टैकल करना, दिमाग जहाँ पे लग रहा हो, वो मिसिंग है अभी भी इनके बैटिंग लाइनअप में। इसलिए क्विंटन का बहुत ज़रूरी है टू स्कोर रन्स। All right, we've got Aiden Markram with us. Let's listen in. Aiden Markram there. Aiden Markram was the under-19 captain for South Africa in 2014, and they defeated Pakistan in the This final. is what happens जब Yeah. आप ब्रेक में रिप्लाई नहीं ना देते। आप स्टैंड पढ़ लेते हैं। ये ब्रेक नहीं थी, ये पैकेज चल रहा था एडन मार्करम ब्रेक का। ही था आपके लिए। चलो मैं रिप्लाई के लिए ब्रेक ले लेता हूँ। We're going to take a break. यहाँ पे See you on the 4 other side. मुंह खुले हुए नहीं हो गए। Welcome back to the Pavilion. Semi-final number 2, it's Australia versus South Africa, and we're getting ready for the action in Kolkata. And with that, I just wanted to say, Wasim, Yes, sir. पिदी फुलचुने फुलचुन के पिदी टीकर टीकर के Sure. पिदी फुलचुने। Okay. Pitch report कर लें? Yeah, go nuts. Here's the pitch report. Wow. Well, your thoughts, gentlemen? Massive statement from Pomi, I must say. He said, doesn't matter the weather, the team that win the toss will definitely bat. And Haydos also said, थोड़ा सा deviate हुए हैं ये दोनों, 3.0 second millimeter turn ज़्यादा होता है यहाँ पे apparently. I mean, this is too much detail. This really is. It's not going to make any. It's not going to help me in any way. Just say कि this यहाँ turn थोड़ा ज़्यादा है. एक चीज और इस पे डेप्थ में जाया जा सकता है वसीम भाई, अगर तो टर्निंग पिच है तो वो फिंगर स्पिनर को ज्यादा हेल्प करेगी या रिस्ट स्पिनर को? महाराज has been और bowling. फिर उसमें Finger को ज़्यादा किस टीम करेगी. में ज्यादा फिंगर स्पिनर है और किस टीम में रिस्ट स्पिनर? यहाँ तो महाराज ही है ना जो bowling brilliantly और in the whole शमशी. World Cup. Yeah, and Shamshi is not in the playing 11. and then Markram. Makram can bowl off spins, yeah? Yeah. I mean, Maharaj have 23 wickets already in this World Cup, averaging 23. Beautiful. Beautiful, typical left arm spinner, और जिसका सिर्फ पेस वेरी करता है, लाइन थोड़ी ऑफ स्टंप से बाहर, नए बैट्समैन को चांस लेता है, छोड़ता है हवा में. Yeah. But what happens with Australia then? Finger spin, but Glenn Maxwell? Glenn Maxwell and then Adam Any Zampa even and then Zampa Travis Head.
Travis So said, they have three guys as well. उनमें एक मेन स्पिनर है, बट ग्लेन मैक्सवेल का थोड़ा सा हम लोगों ने वो बात भी की थी कि उसकी सीम पोजीशनिंग जो है वो ऐसी होती है कि उसको कम टर्न मिलता है, वो स्क्रैम्बल सीम से उसका बॉल जा रहा होता है, तो वो एक है, इसीलिए वो मोस्टली राउंड द विकेट भी जाते हैं अगेंस्ट राइट हैंडर, ताकि वो एंगल से ही जो है बॉल बाहर Cross निकलता जाए, क्योंकि एज अ बैटर आपके दिमाग में आता है जैसे ही ऑफ स्पिनर आए तो मोस्टली आप ये सोचते हैं कि मुझे डाउन द ग्राउंड और मिड विकेट की तरफ जो है वहाँ रन्स देगा, लेकिन वो एंगल से जब बॉल बाहर जाता है, आप क्रॉस बैट के साथ जाते हैं तो वो टॉप एजेस जो है काफ़ी होते हैं। बट ये है कि दोनों टीम्स में ऐसे हैं बॉलर स्पिनर्स हैं कि जो टफ टाइम दे सकते हैं एक दूसरे के बैटर्स को। win the toss and you don't get to bat, right? I mean, sorry, you lose the toss, you don't get to bat. What do you, how do you play the game then? It's one of those. You see, it's difficult to talk about pitch while we are sitting here. Right. वहाँ जाके feel करके देख के palm लगा के moisture कितना है, and I think it's one of those tosses where captain would like to lose maybe, ताकि उसको decision ना करना पड़े in a साउथ way. अफ्रीका वो नहीं चाहेगा ये। They would like to win the toss and bat I definitely. think वसीम भाई ये वाकई आपने जो बात की ना कि वहाँ देयर एंड देन यू कैन असेस कि जैसे आपके हाथ रखते हैं तो यू फील कि थोड़ा सा पिच ठंडी होती है या आपको फील होता है ऊपर मॉइस्चर है। अगर वो नहीं है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना मसला होगा, बट अगर वो मॉइस्चर है तो देन इट्स ट्रिकी, फिर कुछ भी हो सकता है। पहले बैटिंग में भी ग्रिप हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल जब पिच पे घास नहीं होती तो गेंद स्लाइड नहीं करता, हल्का सा भी टॉप मॉइस्चर हो तो उस टाइम पे बैटिंग करनी मुश्किल हो जाती है। All right, guys, you know what? With that, we're taking you straight back to Kolkata, where both the captains are walking out to the field to flip the coin, brought to you by Samsung Flip. All right, the news out of Kolkata is that South Africa have won the toss and have elected to bat. Does that put Australia under pressure straight away? A little bit, because that's what South African wanted, and that's what the pitch report said as well. कि इस पे ball turn होगा 300-290 is a good score. But Australians are tough physically, mentally, and it's a knockout game. They've been there before. 7 plays have. That's what Michael Atherton asked the Australian skipper. So yeah, favor to South Africa because that's what they wanted. That's where the strength is. Get runs on the board, get to 300. But Australian bowling will have a go at them early on. Let me ask you now that we know that there is a bit of moisture in that pitch. South Africa, ठीक है, they like to bat first. ये भी understood सी बात है. But will the Australian seamers and fast bowlers be able to extract something from this pitch right at the start of the game? देखिए मॉइस्चर खैर यहाँ से तो अब हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बट दे विल ट्राई। आई मीन उनके फास्ट बॉलर ऐसे हैं, हेजलवुड जैसे, जो सीम लगता है ऐसी पिच पे, तो वो कहीं ना कहीं हमने देखा है पिछले मैचेस में भी कि हेल्प मिलती है। मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ऐसे बड़े मैच में, क्योंकि अंडर प्रेशर वो भी होंगे, स्टार्ट अच्छा करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। All right, Moin, why don't you take us through the South Africa playing 11 on your screens? जी, बहुमा, टिकॉक, ट्यूसन, मार्क्रम, क्लासन, मेलर, जॉनसन, महाराज, कोइट्जी, बादा, शम्सी प्लेइंग फॉर नगीडी। एक चेंज की है इस टीम ने। आई थिंक दे आर इन द ग्रेट फॉर्म और अच्छी कॉम्पोजिशन बनाई है पिच को देखते हुए, एक स्पिनर को ऐड किया। Australia, Wasim, take us through. Yes, Australia, couple of changes in that head. Warner, 2 lefties. Marsh, who's in great nick. Smith got 50 as well. Labuschagne, proper batter. Maxwell, we know what he did against one of the teams, 200 Afghanistan. English, who can bat as well. And then, of course, 3 fast bowlers and the main spinner, Adam Zampa. So looks a very strong side, this Australian team. एक चीज़ और भी है कि टॉस जीत के पता है कि कभी भी बारिश जो है वो आएगी, डिस्ट्रैक्शंस आएंगी मैच के अंदर, तो टॉस जीत के फिर क्यों वो करनी चाहिए बैटिंग। उसका ये है कि ये रिजर्व डे है, और अगर मैच जहाँ पे भी रुकेगा और वो अगले दिन पे जाएगा तो वहीं से शुरू होगा, नया शुरू नहीं होगा। नया शुरू नहीं होगा, मैच वहीं से शुरू होगा। जैसे हम लोगों ने एशिया कप में भी देखा, जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था, तो वो सेकंड डे पे गया, बट वो वहीं से शुरू हुआ, तो वो भी एक एलिमेंट। इफ इट स्टॉप्स देयर एंड देन, यस, जो भी एक स्टार्ट होगा कि 50 ओवर का मैच, दोनों इनिंग्स के नहीं पूरे, रीस्केड्यूल अगर हो जाए तो वो रीस्केड्यूल जहाँ पे होगा मैच, वहीं से कि मैच छोटा हो गया 25 ओवर का, तो 25 ओवर में जितने ओवर हुए हैं वो अगले दिन पे 25 वहीं से स्टार्ट होगा। और 50 का अगर चल रहा है और बिल्कुल मैच रुक गया तो वो 50 का ही अगले दिन शुरू होगा। तो ये
थोड़ी सी कई दफ़ा जो देखने वाला था उनको कन्फ्यूजन होती है कि भाई ये क्या हुआ। रीस्केड्यूल जहाँ हो गया मैच तो इट मीन्स कि 40 ओवर्स का मैच है तो फिर वो 40 पे जाएगा। All right, with that, we're going to take a break here, but when we come back, we're very close to semi-final number 2. Stay with us. Welcome back to the pavilion. The news out of Kolkata is that South Africa have won the toss and have elected to bat. और break पे जाने से पहले हमने playing 11 दिखा दी थी. And with that, it's time for expert predictions brought to you by Express Power. All right, let's start with you, Misbah. Expert predictions. अच्छा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, Thank you, South Africa. Skip. बदला ले। Australia for me. Australia. Okay, Moin. ऑस्ट्रेलिया के अलावा भी कोई नाम ले ले। सही है। साउथ अफ्रीका फॉर मी। बहन है किस किस्म का पंगा सी? I have no idea. सिल्वर फॉक्स? नहीं ज्यादा सिल्वर फॉक्स। चालाक नहीं क्या था? उर्दू में क्या था? चांदी की लोमड़ी, चांदी की लोमड़ी, सिल्वर फॉक्स, चांदी की लोमड़ी, एनी लोमड़ी। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जनाब। ओके, ऑस्ट्रेलिया सीमा ने बचाना भी दिया ना। अच्छा जनाब जी। Really don't have to. He doesn't need your support, buddy. नो नो ट्रस्ट मी। चलो नेक्स्ट टाइम फाइनल में ख्याल रखो। आज बाकी मलिक का लगा 50-50 है। हाँ, आज लगा मलिक का ना 50-50। Clarity, I asked you. What is the clarity? Clarity is that Australia is winning the World Cup. Winning the Whoa, World big Cup. statement. Big statement. Put that down. Big statement. And those were your expert predictions brought to you by Express Power. And with that, it's time for the player to watch out for, brought to you by Ufone. All right, Chevy. Mitchell Stark. Mitchell Stark. All right, Moin. क्लासन। Klaasen. Okay. And for you, Wasim? I'll go for David Warner. Warner. फूल पत्तियां। All right. And for you, Misbah? महाराज, Maharaj. के लिए ना प्ले टू वॉच के लिए मोइन मैंने पहले पूरा घर बनाया है उसके अंदर लिखा है क्लासन ये उन्होंने तो इसी के लिए बनाया था ताकि इसकी ये नजर देखे पड़े। ये देखे ये गाना ये दिखा दे मैंने भाई। पूरा हथला है दिखा दे, के दिखा ना दे। जायचा बनाया उन्होंने, जायचा, इससे नेक्स्ट टाइम इसको पेन ना देना जायचा। And that's your play to watch out for, brought to you by Ufone. That's actually a cute house that you've made. Moin. I Yes, really like it. absolutely. बिकॉज भाई मेरा प्लेयर ऑफ द मैच है तो फिर मैं अच्छा। समझता हूँ उसको ऐसे ही होना चाहिए। तो उन्होंने प्ले वो टू वॉच player- आउट फॉर, उन्होंने घर बनाया, घर के अंदर खिड़की बनाई, खिड़की के अंदर से जो नजर आ रहे प्लेयर पानी वो पूल नहीं क्लास बनाया उन्होंने घर play इसलिए to watch बनाया कि घर जाना है। मोइन में उसे घर से बाहर तो निकाले Bas, we're all set to go. Thank you, Shoaib. Thank you, Moin. This is really fun stuff today. Thank you, Misbah, and thank you, Wasim. Truly appreciate it. We are now going to be taking you straight to Kolkata, where the two teams are all set to start the semi-final number 2. Good luck to both the teams. Good luck to South Africa and to Australia. We'll see you at the end of the day.